Hello students, welcome to our channel Team Super Cluster. Myself Vipul Vashni and I am here to teach you computer science Java for ICSE classes. And today we will be discussing the basic concepts of OOPS. So starting, as we all know that Java is an object-oriented programming. So first of all, know what are the principles that governs the object-oriented programming. So here they are: class, object, encapsulation, abstraction, polymorphism, and inheritance. These are the basic principles for object-oriented programming, and we will be looking after one by one each of them. So first, let's look what is object-oriented programming. Basically, it describes a programming approach based on objects and classes. Means the object-oriented programming is totally based upon objects and classes. The object-oriented paradigm allows us to organize software as a collection of objects that consist of both data and behavior. It means that we design the software based upon objects and the classes. Now, what is a class? So basically, a class is a blueprint for an object. A class is considered as a blueprint for an object, and the class specifies the attributes and the methods that a particular type of object has. Further, from any class we can derive many objects. For a class, from a class we can derive as many objects as we can, and depend upon the usage. Object is basically an instance of a class. As in the previous slide we have seen that class was the blueprint for an object, and object is an instance of a class. Basically, we can use an object to store data. The data stored in the object are commonly called as attributes, properties, or fields. These are the alternative names. Further, the object can perform operations. The operations here it is known as methods. These are known as the methods. And important to note that if classes are considered as an abstract representation, means classes gives just a brief idea. On the other hand, objects are the actual implementation. Now with this help of this example, we will understand the classes and the objects. This is a class called car. This is a class called car. So as you all know, जैसे कोई कार होती है तो कार का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि एटलीस्ट उसमें क्या कहते हैं 4 व्हीलर हो, ठीक है, एसी है कि नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ मोर देन 1 पैसेंजर उसमें बैठ सकते हैं, उसका फ्यूल टाइप, कलर, ये सब क्या है, एक क्लास है. मतलब अगर हम सारी क्लासेस में देखें तो कुछ चीज़ कॉमन है. जैसे कार सुनते ही हमको आ जाएगा कि वो 4 व्हीलर है, उसका कलर क्या होगा, एसी है कि नहीं. तो उसी तरीके से ये एक क्लास बनी है कार, और ये हैं इसके ऑब्जेक्ट्स. जैसे एक क्लास बन गई कार, और ये हैं उसके ऑब्जेक्ट्स. अब ऑब्जेक्ट्स में हम क्या देख रहे हैं कि हमारी यहाँ पे कार का कलर अलग अलग है, अलग अलग कंपनीज है की हैं, बट जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो क्या है, वो सेम है कि ये सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये बिलोंग करते हैं एक कार को, और उस कार की सारी जो प्रॉपर्टीज हमने इनिशियली हम लेके चले थे क्लास बनाते समय, वो इनहेरिट कर रहे हैं, वो फॉलो ऑन कर रहे हैं. फर्दर इसको और देखते हैं एक दूसरे इसी एग्जांपल से. जैसे यहाँ पे क्लास है हमारी
कार की, अब कार के अंदर अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अपने कुछ मेथड्स हैं। अब इसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, से फॉर एग्जांपल कि फोर्ड कंपनी ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका एक कार बनाई, तो उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स होंगे जो कि इसी क्लास से फॉलो ऑन हो रहे हैं। भाई जैसे मैंने आपको बताया कि कार है, तो हमारा नाम सुनते ही हमको समझ में आ जाता है कि हाँ वो एक 4 व्हीलर होगी, ठीक है। उसका कुछ फ्यूल टाइप होगा, कुछ उसका मोड होगा, एसी होगी, नॉन एसी होगी, ठीक है, टाइप होगा, एक्सयूवी होगी कि हैच कार होगी, अलग अलग टाइप्स की जो कार्स होती हैं। बट बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो इनहेरिट करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मेन क्लास बना लिया, उसका क्या है कार बना लिया, और फिर कार से हमने उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स किए। अब हमको ये देखना है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे डिफर करेगा। तो बेसिकली जैसे एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ये फोर्ड का एक ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये क्या है, टोयोटा का एक ऑब्जेक्ट है। दोनों ही क्या है, एक ऑब्जेक्ट हैं सेम क्लास के, बट इसमें कैसे डिफरेंशिएट होगा, वो ये प्रॉपर्टीज और इन मेथड से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हो सकता है कोई कार है हमारी, वो उसका फ्यूल टाइप में डिफरेंस हो, तो मतलब यहाँ प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो जाएगा उसका। हो सकता है यहाँ पर जो फ्यूल टाइप हो वो पेट्रोल हो, और यहाँ पे हो सकता है डीजल हो, यहाँ पे हो सकता है उसमें एसी हो, और हो सकता है इसमें एसी ना हो, ठीक है। तो ये सब इसके वेरिएशंस है। तो मेन पॉइंट क्या है कि हमारी एक क्लास होती है, उस क्लास से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके डिस्टिंग्विश करके हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफर करते हैं। फर्दर इसको समझ लेते हैं। अगर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी है। सो जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि एक हमारी, अगेन वही एग्जांपल मैं फॉलो ऑन कर रहा हूँ कि एक कार क्लास है, ठीक है। अब इस फर्दर क्लास से हमने इसके ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो देखिए सबसे पहला डिफरेंस क्या है, सबसे पहला डिफरेंस है कि इसके कलर में डिफरेंस है, ठीक है। एक ग्रीन कलर की है, एक रेड कलर की है, एक ब्लू कलर की है, तो ये भी एक डिफरेंस है इसमें। तो जैसे इसकी क्या है प्रॉपर्टीज, ग्रीन, रेड और ब्लू। फिर क्या है, इसका कंपनी, जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, ये इसका एट्रीब्यूट है। फिर अलग अलग इसके और जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड आउट हैं, उसका मॉडल हुआ, ठीक है, अलग उसके टाइप। तो ये क्या है, एक क्लास है, उस क्लास के क्या है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे डिफर करता है, बाय इट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। नाउ डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूट से। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सो दीज आर द इंडिविजुअल थिंग्स, These are the individual things that differentiate one object from another। जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल में देखा, हमने एक क्लास बनाई थी कार, और उस कार के हमने कई ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। तो हमने क्या देखा था, एक कोई कार में कलर का वेरिएशन हो रहा था, कोई कार रेड थी, कोई ब्लू थी, कोई ब्लैक थी, तो वो उसकी एक प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी। उसी तरीके से अगर हम फ्यूल टाइप की बात करें तो हो सकता है फ्यूल टाइप उसमें पेट्रोल हो, डीजल हो, सो वो क्या था एक दूसरा, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, एक मोटरसाइकिल क्लास का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसमें इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, कलर, स्टाइल और मेक, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी ये प्रॉपर्टीज वेरी कर सकती है कि हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और हर ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी होगी क्या, कलर। अब हो सकता है कोई कार रेड कलर की हो, कोई ग्रीन की हो, कोई सिल्वर की हो, कोई ब्राउन की हुई, तो इसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मोर ओवर हर जो भी कार होगी उसका क्या होगा, कोई स्टाइल होगा, ठीक है। तो वो भी एक मीन्स है डिफरेंशिएट करने का। जैसे आपको पता है कोई कंपनी होती है तो उस कंपनी की कई कारें आती हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है 2 कार हो, वाइट कलर की हो, बट क्या हो उनका स्टाइल अलग हो, एक स्पोर्ट्स कार हो, एक नॉर्मल फैमिली कार हो, तो ये इनका अलग फीचर है जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, वो तो कई तरह की कार बनाती है, तो आपकी एसयूवी, एक्सयूवी अलग अलग है कि नहीं, जबकि आपका हो सकता है कलर सेम हो, फ्यूल टाइप सेम हो, कंपनी सेम हो, सब कुछ सेम हो, बट क्या हो कैटेगरी अलग है आपकी। ऑन द अदर हैंड अगर मान लीजिए सेम कैटेगरी की बात करें तो हो सकता है उसका फ्यूल टाइप अलग हो, तो वो सब क्या है इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। वन थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड बाय वेरिएबल्स, मतलब एट्रीब्यूट्स जो हम डिफाइन करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं। अभी जब इसके इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो इस चीज़ हम क्लियर कर लेंगे, कैसे हमारे क्लासेस बनेंगी, कैसे उसके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, कैसे उसमें वैल्यू पास ऑन करेंगे, वो चीज़ें अभी हम आपको क्लियर कर देंगे। फर्दर अगर हम आगे एक्सटेंड करें इसको, नाउ नेक्स्ट इज बिहेवियर। बिहेवियर इज द वे ऑब्जेक्ट कैन डू एनीथिंग टू देमसेल्व्स।
मतलब जो ऑब्जेक्ट्स पे हमको काम कराना है उसको हम बिहेवियर के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लास मोटरसाइकिल की, तो मोटरसाइकिल हमारी क्लास बन गई। अब हमको क्या करना है, एक उसमें मेथड हो सकता है स्टार्ट द इंजन, एक दूसरा मेथड हो सकता है स्टॉप द इंजन, एक तीसरा हो सकता है स्पीड अप, एक चौथा चेंज द गियर। तो ये सब क्या हैं, ये सब मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं जो उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो और द लास्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस, और बिहेवियर को हम बेसिकली इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड से, ठीक है। अब जैसे उसी एग्जांपल को मैंने समराइज किया हुआ है यहाँ पर कि हमारी एक सिंगल क्लास बनी क्या, मोटरसाइकिल, और उसमें हमने क्या डिफाइन कर दिया, प्रॉपर्टीज और मेथड डिफाइन कर दिया। अब प्रॉपर्टीज में क्या होंगी, जैसे कलर, स्टाइल, मेक, वो सब क्या हो गए, इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। प्रॉपर्टीज कह लीजिए, एट्रीब्यूट्स कह लीजिए, फील्ड्स कह लीजिए, सब इसके ऑल्टरनेट नेम्स हैं। और मेथड्स जो हम जिससे हम बिहेवियर डिफाइन करते हैं, जैसे स्टार्ट द इंजन, स्टॉप द इंजन, स्पीड अप द इंजन, ठीक है। इसी से ये ऑब्जेक्ट हमारा फंक्शनल होगा। अब हम ऊप्स के नेक्स्ट प्रिंसिपल्स पे आते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, अभी तक जो हमने आपके साथ डिस्कस किया वो हमने क्लास डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे जाते हैं, दैट इज इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। इन सबको भी हम डिटेल में एक देखेंगे। अब इंकैप्सुलेशन क्या कहता है, इंकैप्सुलेशन रिफर्स टू द बंडलिंग ऑफ डेटा विद इट्स मेथड्स। मतलब डेटा के साथ मेथड्स की जो हम बंडल करते हैं, रैपिंग अप कर देते हैं, दैट इज नोन एज इंकैप्सुलेशन। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई और उसके डेटा मतलब वेरिएबल्स, डेटा हम कहाँ रखते हैं, वेरिएबल्स। हमने अभी देखा था कि एट्रीब्यूट हम वेरिएबल्स के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं और बिहेवियर को कैसे करते हैं, मेथड्स के थ्रू। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने क्लब कर दिया, इसको हमने एक सिंगल में इंकैप्सुलेट कर दिया, जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ कैप्सूल। हमने उसकी क्लास बनाई, क्लास के अंदर क्या किया, वेरिएबल और मेथड, जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं कि हमने क्लास बनाई और इसके जो भी मेंबर्स और मेथड्स वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो ये ऑल टुगेदर क्या बन गई, इंकैप्सुलेशन हो गया ये, दिस इज द इंकैप्सुलेशन। और इंकैप्सुलेशन इज यूज्ड टू हाइड द वैल्यूज और स्टेट ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑब्जेक्ट इनसाइड द क्लास टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसमें हम बेसिकली इसका यूज इसलिए करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास बनाई, क्लास में उसके वेरिएबल्स और मेथड इसको हमने इंक्लोज कर दिए ताकि अननेसेसरी इसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके। फर्दर नेक्स्ट जो उसका प्रिंसिपल है दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या कहता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स and showing only the essential information to the user. It means जैसे abstraction है, abstraction में क्या होता है, जैसे आप आजकल कोई भी डिवाइस ले लीजिए तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं यूज़र को वो वही इन्फॉर्मेशन देते हैं जो उसके लिए यूज़फुल हो। से फॉर एग्जांपल अगर हम एटीएम मशीन का एग्जांपल लेते हैं, इसमें बेस्ट एग्जांपल है कि हम सबको पता है कि एटीएम मशीन कैसे ऑपरेट करती है, कि जैसे उसमें हम कार्ड स्वाइप करेंगे, पिन डालेंगे तो उसमें हमारा बैलेंस पैसा आ जाएगा, हम डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। बट इंटरनली वो कैसे परफॉर्म करते हैं वो एक यूज़र को नहीं पता। मीन्स हमको ये तो पता है कि कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे हम कार्ड स्वाइप करेंगे, कैसे पेमेंट आएगा, बट इंटरनली कैसे मैकेनिज्म होता है वो नहीं पता हमें। से फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने सपोज 10,000 की विड्रॉ के लिए अप्लाई किया, उसमें विड्रॉ किया, उसमें अब किस किस डिनोमिनेशन में कौन कौन से नोट्स आएंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। वो मशीन अंदर से कैसे ऑपरेट करती है, ठीक है। ये तो वो क्या है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो पता होगा, वो उसके जो मैकेनिक्स होंगे, जो जिन्होंने इंजीनियर्स होंगे उनको पता होगा, बट एक लेमैन यूज़र को वो जानने की ज़रूरत नहीं है। से फॉर एग्जांपल दूसरे में अगर मान लीजिए हम कार है, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स कॉमन चीज़ है, हम सब लोग ड्राइव करते हैं, हमको पता है कि गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी, कैसे हम उसको ड्राइव कर लेंगे, पर इंटरनल मैकेनिज्म कैसा है, कैसे उसका इंजन वर्क करता है वो हमको नहीं पता,
ठीक है, तो दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट को हम हटा देते हैं और यूजर को वही डिटेल देते हैं जो उसके लिए यूजफुल हो। सो दैट इज द रोल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे वो एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे एक कार है, ठीक है, अब उस कार को ड्राइवर ड्राइव कर लेता है, तो उसको क्या पता है कि हाउ टू यूज दैट कार, ठीक है। फर्दर अब वो कार कैसे बनी है ये ड्राइवर को कैसे पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्शन दे दिया कि ड्राइवर को कार चलाना मालूम हो पर कैसे बनी है वो ज़रूरत नहीं है उसकी। सो वहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्शन दे दिया। अब जो जिसने बनाई होगी उसको पता होगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑटोमोटिव इंजीनियर डिज़ाइंस कार, मतलब उसको पता है कि ये कार कैसे बनी है। गॉट इट। अब उसने भी क्या किया होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स यूज़ करके कार बनाई है, ठीक है, तो उसको उसका यूसेज पता है कि हम इन यूनिट्स को कैसे यूज़ करके एक कार बना लें, ठीक है। बट वो इटसेल्फ में वो जो यूनिट्स बने हैं वो कैसे बने हैं वो उसको नहीं पता, वो उसने बने बनाए यूनिट्स लिए उसको प्लेस कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो कार पार्ट डिज़ाइनर हैं उन्होंने उनको डिज़ाइन किया हुआ है। पर अगेन यहाँ पे क्या है कि अगर हम बेसिक पे देखें तो यहाँ पे ये एट द बेस कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर मतलब और भी छोटे यूनिट से बने हुए हैं। तो अगेन इसको यूज़ करना तो आता है पर इसको बनाना नहीं आता। सो ये एक बिल्कुल हियरार्की दिखा रहा है कि कैसे एब्स्ट्रैक्शन हम सेवरल लेयर्स पे हो सकती है, कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मींस कैसे हम क्लास में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि कौन सा डेटा दिखाई पड़े कौन सा डेटा नहीं दिखाई पड़े। ये सब भी चीज़ें हम अभी आगे प्रोग्रामिंग में सब देखेंगे। ये जब आपको मैं प्रैक्टिकल सेशन लूंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता चलूंगा। अभी मैं स्टार्ट बेसिक से कर रहा हूँ कि अगर इन केस आपका 10th है बोर्ड है तो मैं 9th का बेस भी लेके चल रहा हूँ। हो सकता है वहाँ पे जनरली बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, समझते नहीं है। तो मेरा बस ये अप्रोच है कि आप लोग यहाँ समझते चलिए और उसके साथ साथ जब मेरे प्रैक्टिकल सेशंस होंगे मैं टॉपिक लूँगा, टॉपिक के साथ साथ उसके कोड भी मैं डिमॉन्स्ट्रेट करा दूँगा यहाँ पे, जैसे मेरा प्रीवियस वीडियो देखा ही होगा आपने, और वो हम यहाँ सब डिस्कस करते चलेंगे। नाउ फर्दर नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हम देख लेते हैं दैट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ ए क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास। मान लीजिए हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, अब उसकी हम एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज ही यूज कर लेंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल हम कार का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कार एक क्लास बनी हुई है, तो अब उस कार क्लास का क्या होगा, से फॉर एग्जांपल कार क्लास बनी है, ये हमारी एक क्लास है। अब इसका कुछ फीचर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसका फ्यूल टाइप होगा, ठीक है, ठीक है, ये एसी है कि इसका मोड एसी है कि नहीं, या ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है। सपोज अभी हम दो फीचर लेते हैं, एक उसका फ्यूल टाइप ले लेते हैं, दूसरा उसका मोड ले लेते हैं। मोड इन द सेंस कि ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है। अब हम इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। हो सकता हो एक कार हो, ठीक है, जो कि कार का नाम C1 और जो कि पेट्रोल से चलती हो और ऑटोमेटिक हो। दूसरी एक कार हो हमारी C2, इसका क्या फीचर हो सकता हो ये CNG से चलती हो और ये मैनुअल हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इनहेरिटेंस क्या हो रहा है कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इसका फ्यूल टाइप, मोड, इसके मतलब कितने व्हील से 4 व्हीलर है, ठीक है, वो सब चीज़ ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेड है। मींस इसकी जो अपनी यूनिक प्रॉपर्टी है वो तो अलग है, और ये साथ ही साथ अपनी सब ऊपर सुपर क्लास की भी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर दे रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ये भी डिमॉन्स्ट्रेटेड है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे ये भी है कि जनरली एक चाइल्ड जो है वो क्या करता है, वो सारी प्रॉपर्टीज, फीचर्स, सब कुछ, नेम, फेम, सब कुछ अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी एक ऊप्स का प्रिंसिपल है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है सिंगल फॉर्म मल्टीपल फॉर्म सिंगल मेथड। सो जैसे इसमें हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली जैसे हमने एक क्लास बनाई शेप, और उसमें हमने क्या बनाया, एक एरिया बनाया। एरिया बेसिकली क्या है, शेप क्लास है, एरिया मेथड है। अब हमने यहाँ पे इसकी सब क्लासेस बना लिया, सर्किल एक क्लास है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है। अब और जो मेथड का नाम है वो हमने क्या रखा, वो हमने सेम रखा,
एरिया। सो अब डिपेंडिंग अपॉन द शेप इट विल कंप्यूट द एरिया। जैसे हो सकता है कि जो यूज़र से जब हम इसकी डिटेल्स लें, हो सकता हो यूज़र क्या डाले, रेडियस डाले, तो जैसे ही यूज़र रेडियस डालेगा तो हम क्या कंप्यूट कर लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल कंप्यूट कर लेंगे। हो सकता है कि वो यूज़र क्या करें, साइड्स के उसके एंगल्स दें हमको, ठीक है, तो हम कंप्यूट कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। हो सकता हो यूज़र उसके डायमेंशंस दें, लेंथ और ब्रेथ दे उसके, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर लेंगे, रेक्टेंगल का एरिया कंप्यूट कर लेंगे। तो इट मींस सिंगल इंटरफेस मल्टीपल मेथड्स, ठीक है। सो यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म वी कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। हमारे पास एक इंटरफेस है और उसको हम मल्टीपल वे में यूज कर ले रहे हैं। नाउ दोज वर द प्रिंसिपल्स, बेसिक ऊप्स प्रिंसिपल्स थे जो हमने देखे, एग्जाम्पल से देखे, और बाकी अभी हम जब कोडिंग सेशन में देखेंगे तो उन सबको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अब हम फर्दर एक देख ले रहे हैं थोड़ा जावा के बेसिक्स में। जैसे जावा कहा जाता है ना कि जावा इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड बोथ लैंग्वेजेस, ये बोथ है, कंपाइल्ड भी होती है और इंटरप्रेट भी होती है। तो कैसे ऐसा क्या कारण है इसको देख लेते हैं। सो बेसिकली जैसे पता है कि इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सन माइक्रोसिस्टम ने बनाया है उसको, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन टू बी स्मॉल, सिंपल एंड पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स कि हम इसके कोड को या इसके जो एप्लीकेशंस को जो बने हुए हैं वो हम एक मशीन से दूसरी मशीन पे ले जा सकें। पहले जो लैंग्वेजेस होती थी वो पोर्टेबल नहीं होती थी। तो पोर्टेबल ना होने का मतलब बेसिकली क्या होता था कि अगर हमने एक मशीन के लिए कोड कर लिया, ठीक है, और दूसरी मशीन पे चलाना है तो हमको उस कोड में भी चेंज करना पड़ता था। मतलब हमारे जो कोड्स थे वो मशीन स्पेसिफिक थे। अगर हमने एक मशीन के लिए बनाया है तो वो उसी पर्टिकुलर मशीन के लिए बनेगा, चलेगा। दूसरी मशीन के लिए हमको उसके कोड में चेंज करना पड़ेगा। बट आप जो लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हो गई, ये सब पोर्टेबल हो गई हैं। मीन्स आपने कोड लिख लिया, आप उसको अलग अलग मशीन्स पे चला सकते हैं। सो अब बात आती है जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मीन्स इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ मूविंग इजिली फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का यही मतलब हुआ कि बिना किसी फर्दर मॉडिफिकेशन या चेंजेस के हम उसके पे बने प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस एक मशीन से दूसरे मशीन पे ले जा सकते हैं। अब जरा इसको कंपेयर कर लेते हैं कि इसका जो कंपाइलेशन या इंटरप्रेशन पार्ट है वो कैसे जो प्रीवियस लैंग्वेजेस से कैसे डिफर करता है। तो जैसे यहाँ पे इसमें डिमॉन्स्ट्रेट हम देख रहा है हमें कि ट्रेडिशनल कंबाइंड प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, मतलब ट्रेडिशनली जो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स बनते हैं वो कैसे कंपाइल होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारा कोड है, ये हमारा कोड है, ठीक है। दिस इज द प्रोग्राम, हमारा सोर्स कोड है जो हम टाइप करते हैं, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में है। अब क्या होता है कि कोड हमने टाइप कर लिया, उस पर्टिकुलर किसी कंपाइलर से हम उसको कंपाइल करा लेते हैं, ठीक है। कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि अलग अलग मशीन के बेसिस पे हमारे पास क्या है, अलग अलग कंपाइलर्स हैं। जैसे ये कंपाइलर पेंटियम मशीन का है, पावर पीसी है, स्पार्क, ये अलग अलग मशीन्स हैं और ये तीनों क्या हैं, उसी पर्टिकुलर मशीन के रिस्पेक्टिव कंपाइलर्स हैं। हमने सोर्स कोड दिया, सोर्स कोड कंपाइल हुआ, कंपाइल होके हमको क्या मिला, हमको बाइनरी फाइल मिल गई। बट यहाँ पे क्या है, जो बाइनरी फाइल मिली है वो क्या है, दीज ऑल कोड्स आर मशीन डिपेंडेंट। जो हमको यहाँ पे मशीन मिली, जो कोड मिले हैं हमको कंपाइल होने के बाद, ये सब क्या है, मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस मशीन का कोड, इसका कोड दूसरी मशीन पे चलाएंगे तो वर्कआउट नहीं करेगा। अगर हम इसका मशीन का कोड इस पे चलाएंगे वर्कआउट नहीं करेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करते हो तो आपको बार बार कंपाइल करना पड़ता है ताकि वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये मशीन डिपेंडेंट है, एक का कोड दूसरी मशीन पे नहीं चलेगा अनटिल एंड अनलेस हम उसको उसके स्पेसिफिक कंपाइलर पे कंपाइल ना कर लें। सो ये था हमारा ट्रेडिशनल कंपाइल। ऐसे पहले कंपाइल होते थे कि हमने कोड लिया, अलग अलग कंपाइलर पे कंपाइल किया, उस अलग अलग रिस्पेक्टिव कंपाइलर्स ने उनके लिए रिस्पेक्टिव मशीन कोड जनरेट किए और उस मशीन कोड को हम मशीन पे चला लेते थे। बट जावा केस में क्या होता है उसको देखते हैं।
जावा को हम कहते हैं कि इट इज़ बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। तो इसका बेसिकली क्या मतलब हुआ, जैसे फिगर से देखिए कि अगर हमने यहाँ पे कोड लिखा, जावा कोड हमारा सोर्स कोड है ये, और हमने क्या किया कि कंपाइलर से उसको कंपाइल कर लिया, जो भी मशीन है उसका स्पेसिफिक कंपाइलर है उससे कंपाइल करा लिया। बट इंस्टेड ऑफ गिविंग द डायरेक्टली द मशीन कोड, हमको यहाँ पे एक बीच में इंटरमीडिएट कोड मिलता है, दैट इज नोन एज द बाइट कोड। मतलब डायरेक्टली हमको मशीन कोड ना देके हमने क्या दिया, बाइट कोड। और मेन थिंग इज अबाउट दिस बाइट कोड इज दैट दिस कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब हमने क्या किया कि जावा का कोड लिखा, कोड लिख के कंपाइल किया, कंपाइलेशन के बाद क्या हुआ, हमको क्या मिला कंपाइलेशन के बाद, बाइट कोड मिल गया। और बाइट कोड क्या है, वो हमारा मशीन डिपेंडेंट नहीं है, इट इज मशीन इंडिपेंडेंट कोड। अब इसको हम किसी भी मशीन पे चला सकते हैं। सो दैट इज वाई जावा इज नोन टू बी कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड बोथ। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर थोड़ा बाइट कोड जैसे मैंने अभी जो लास्ट फिगर में दिखाया आपको, दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट लुक्स लाइक सम मशीन कोड बट दे आर नॉट स्पेसिफिक टू एनी वन ऑफ द प्रोसेसर, मतलब दे आर नॉट द मशीन स्पेसिफिक। ठीक है सर, सो थैंक यू। आज मैं अपना सेशन यहीं एंड करता हूँ, आगे आपको और सेशन में कंटिन्यू करूँगा। और जो भी यहाँ पे मैटर मैं आपको जो भी यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ वो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, ये आपको लिंक्स शेयर हो जाएंगे उसकी। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।